gets a tag of infrastructure going forward to attract more and more capital. But nonetheless, even when that is not being done, what On the screens? Well, this must be the picture of the day. Vivek Devangan, CMD REC Limited. I would like to congratulate Association of Financial Advisors of India for organizing this day-long session on green finance, investment, and achieving net zero ambition by the year 2017. I hope that deliberation in this day-long conference will prepare a practical roadmap for achieving our ambition of becoming net zero by the year 2070, and various facets of green finance and the investment would also be deliberated, because we have to provide customized solution to the requirement of the developers. That also this aspect would be deliberated. My best wishes for Association of Financial Advisors of India. I am Rajiv Ranjan Jha, Director Projects, Power Finance Corporation. So, I would also like to congratulate AFI for organizing this workshop on a very relevant topic, uh, which is going to be very, very important in driving the Indian economy as well in coming years, coming decades. And I hope that on the conclusion of this workshop, there would be solutions which will be emerging to support the financing of energy transition, and also the objective of Government of India for installation of 500 gigawatt by the year 2030, and also for net zero by 2070. Thank you. I am representing Niti Aayog and AFI. As we see, they have brought a lot of experts together under one roof, and they are thinking that how to take this financing, how to solve this financing issue, which is there, which is probably one of the most critical issues in the entire green transition that is taking place. As I said, my expectation is that if they can identify maybe and come back to us and identify three big unlocks that will sort out this problem, because otherwise manufacturers are there are people who are into charging infrastructure, now we have operators, we have got the users at the end, and everybody is looking for finances. So after all, how to sort out the finance issue, that is the challenge. And I'm sure that the kind of configuration, the kind of people, the kind of themes that they are looking into, they will definitely come out with those solutions, and we'll be very happy to take them forward. Thank you. I think everyone agrees that net zero commitment by 2070 is the minimum we need to be doing as a country, as a society, to be able to meet our climate goals. And the scale of investment required for that is humongous. Various estimates put it between 10 to 15 trillion dollars. And to do that, what we discussed and shared was that it is not enough that only government or public sector, which has been till now front loading these investments, including lending, there is a immediate need to encourage and bring in private sector, mobilize domestic capital from all sources, retail, pension, and insurance, and also bring in global capital to the requirement of net zero. So I think these are the things we discuss, and we hope to actually continue working with Niti Aayog to see how do we incentivize more private and foreign capital coming into Indian debt financing for net zero goals. Thank you. ग्रीन फाइनेंस तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बाकी सारे टारगेट्स हम लगा दें। एक डिसरप्शन है, पहले की स्थिति से ये बिल्कुल एक नई स्थिति में आप लाना चाहते हैं। आप गाड़ियों को बदलना चाहते हैं, आप घरों पे जो हैं वो सोलर प्लांट्स, सोलर मॉड्यूल्स लगाना चाहते हैं, आप एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स नहीं लगाना चाहते। तो कंप्लीट डिसरप्शन है, और ये केवल डिसरप्शन एक जगह पर नहीं है, कंप्लीट एंड टू एंड जिसको कहेंगे, पूरे के पूरे वैल्यू चेन में डिसरप्शन है। नया वैल्यू चेन लगेगा, इसलिए उस स्थिति में फाइनेंस जो है वो हर एक स्टेप पर, जैसे स्टेशन की तरह समझिए, हर एक स्टेशन पर फाइनेंस की आवश्यकता होगी। यह फाइनेंस किस प्रकार से कम दर पर, कम इंटरेस्ट रेट पर आसानी से सुलभ हो सके, उसके बाद ही जो है
ये ट्रांजिशन का सबसे बड़ा इनेबलर आप समझ लें वो ग्रीन फाइनेंस ही है। जो टारगेट्स जो हम लोगों ने बनाए हैं वे बड़े ही एस्पिरेशनल टारगेट्स हैं और कई क्षेत्रों में जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लीजिए, यहाँ पर केवल भारत यह नहीं चाहता कि हम केवल ईवी यूजिंग नेशन बने, हम यह भी चाहते हैं कि हम दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बने। अब उस स्थिति में आपका एस्पिरेशन और भी ज़्यादा है, उस तरह का हम एस्पिरेशन रखते हैं तो नेचुरली जो एफर्ट है, जो कमेंसुरेट एफर्ट है, वो फाइनेंस की तरफ से और भी ज़्यादा होना चाहिए। जैसा कि आपने सुना अभी कि केवल यह सरकार के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से संभव नहीं है। इसके लिए तमाम तरह के ब्लेंडेड फिनांस, पीपीपी मॉडल्स, सारे मॉडल्स को लेकर के आना पड़ेगा, तभी इस चीज़ को हम आगे दिशा दे सकते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र पंकज है। मैं असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम लोग ग्रीन फाइनेंसिंग, ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग में इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज में से हैं और आज के समिट का गोल था कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस जो हैं वो 2070 तक हमारे देश ने लक्ष्य लिया है। उसको पूरा करने के लिए किस तरह की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स होगी और वो कैसे किया जा सकता है। तो इस विषय को लेकर कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले, और उसके बाद वो किस तरीके से मीट हो सकती है। और एक उसका निष्कर्ष ये जरूर निकला कि खाली सरकार के कैपिटल से, पूंजी से ये नहीं हो सकता है। हमें प्राइवेट सेक्टर और दूसरे देशों से कैपिटल, ग्लोबल कैपिटल की आवश्यकता है। उसको कैसे अट्रैक्ट किया जाए, इस बारे में भी कुछ विचार रखे। अभी बाहर से कितने कंट्रीज़ ने आपको कोऑपरेट किया है और या आप लोगों ने किन से कॉन्टैक्ट किया है, और इंडिया के अंदर आपकी क्या अभी परफॉर्मेंस चल रही है? हमारी कंपनी का हम उदाहरण लें तो SMBC जो कि जापान के बैंक हैं, उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। 10% उनकी स्टेक है, करीब 450 करोड़ रुपए का। और भारत सरकार का 30% स्टेक है, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। तो इस तरीके से डोमेस्टिक कैपिटल और फॉरेन कैपिटल दोनों को इकट्ठा करके एक छोटी शुरुआत करी है। हमारा एसेट बुक अभी 15,000 करोड़ के करीब है और हमें उम्मीद है कि आगे चल के इसको कई गुना बढ़ा पाएंगे। अभी आपने बताया कि 2070 तक का आपका टारगेट है और 5 इयर्स में आपका जो है एक बार जो है सर्वे करते रहेंगे आप कि आप लोग कहाँ तक पहुँचे। तो उसके बारे में आप बताएं कि ये आपकी कंट्रोलिंग बॉडी कौन कौन सी है जो 5 साल के बाद आपका रिव्यू करेगी आपके मैनेजमेंट को? हर डिपार्टमेंट जो है उसकी तरफ काम कर रहा है। जैसे अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 2030 तक हमारे कंट्री का गोल है 500 गीगावाट। आज हम 200 गीगावाट के करीब हैं। तो अगले 5 सालों में हमें 200 से 500 पे पहुंचना है, यानी कि 2 गुना से ज़्यादा करना है। पर यही चीज़ आप 5 साल पहले देखेंगे तो हम इसके 1/4 भी नहीं थे जहाँ हम आज पहुँचे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम यहाँ तक आए हैं और जिस तरह का सपोर्टिंग एनवायरनमेंट है और जिस तरह की एनकरेजमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, ये 2030 में 500 गीगावाट का लक्ष्य हम ज़रूर पूरा करेंगे। मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। मैं AFAI का फाउंडिंग मेंबर हूँ। AFAI का जो फुल नेम है वो एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑफ इंडिया, जिसके मेंबर सारी कंट्री से जो बैंकर्स हैं और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं वो लोग हैं। और हमारा उद्देश्य है कि जो फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं और जो नए एरियाज हैं उनको हम जितना ज़्यादा उसका प्रसार कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो AFAI ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मेरा जो प्रैक्टिस एरिया है, मैं डायरेक्टर हूँ रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेड में, जो एक मर्चेंट बैंकिंग कंपनी है। और ये जो प्रोग्राम हमने किया है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि जो एक रिक्वायरमेंट है कि ग्रीन फाइनेंस के लिए हमें नेट जीरो टारगेट अचीव करना है, उसमें फाइनेंस बहुत क्रूशियल एरिया प्ले करता है। और जो टारगेट एक अभी कुछ एजेंसीज ने टारगेट दिए हैं कि हमारा जो 2047 तक $10 ट्रिलियन की हमारी फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि ग्रीन फाइनेंस के लिए है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और जिसमें हमने सारे इकोसिस्टम को बुलाया है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूनिक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कि सारे बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, प्लस फंड्स हैं, जो जितने प्राइवेट इक्विटी फंड, VC फंड्स हैं और मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्ल्ड में फंडिंग करते हैं और इंडिया में डेवलपमेंटल फाइनेंस को फंड कर रहे हैं। दूसरी साइड में डेवलपर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो सारे जो ग्रीन सेक्टर को फंड कर रहे हैं, ग्रीन सेक्टर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रीन सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास। हमने कोशिश की है कि इन सबको एक जगह पे लाया जाए और उन सबका एक जो चैलेंजेज हैं
और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको डिस्कस करें और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान हो, और ये जो सेक्टर की रिक्वायरमेंट है उसको जैसे जैसे आगे बढ़े वो रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो और साथ में हमने इसमें एक कोशिश की है, एक छोटा अवार्ड का जो प्रोग्राम किया है, जिसमें हमने जो इंडस्ट्री में अच्छा लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंसर्स हो, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों या गवर्नमेंट के लोग हों, उनको हमने एक अवार्ड के थ्रू नॉमिनेट कराया है, और उसमें से काफ़ी लोगों ने नॉमिनेट किया है, और उसमें करीब हम लोग 12 अवार्ड्स आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें जूरी एक सेपरेट जूरी है, इंडिपेंडेंट जूरी है, हेडेड बाई वन रिटायर्ड IAS जो सेक्रेटरी, और वो जूरी हमारा सारा उन्होंने एवेलुएट किया है, उसके बेसिस पे सारा अवार्ड फंक्शन किया है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द अवार्ड विनर, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू टू ऑल द dignitaries who have joined us, and the delegates who have come together, and media also for making it so insightful. Thank you so much. सर अगर देखा जाए कि 2070 जो है काफ़ी लंबा समय है, और आपका 5 इयर्स में कंट्रोलिंग कौन करेगा, और किस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, उस परफॉर्मेंस को कैसे कैसे कौन सी बॉडी है आपकी जो कंट्रोल करेगी? देखिए, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 8 कंपनी है, और ये इसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो भी लोग अपॉइंट होते हैं, जो भी लोग नॉमिनेट होते हैं, उसका एक प्रोसेस है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड बॉडी है। वहाँ पे जो अच्छा काम करेंगे वो लोग आगे आएंगे, तो उनको मौका मिलेगा, और जैसे जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाएगा आगे, उसमें और लोग जुड़ते जाएंगे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के जितने भी फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं वो सारे लोग इसमें जुड़ें, चाहे बैंकर हो, चाहे कोई इन्वेस्टर हो, चाहे फाइनेंस प्रोफेशनल हो, और उसमें जो अच्छा काम करेगा, जो काम करने का जिसका इंटरेस्ट होगा, उसको आगे जिसकी गवर्निंग बॉडी में चांस मिलेगा काम करने। फॉरेन कोलैबोरेशन का कितना योगदान है आपका? देखिए, AFAI का फॉरेन कोलैबोरेशन का अभी तक तो हमारा कोई ऐसा कोई प्लान नहीं किया है, बट ओवर दी आफ्टर सर्टेन ईयर्स वी आर थिंकिंग दैट इन डिफरेंट कंट्री जो एसोसिएशंस हैं उनके साथ हम कोलैबोरेशन करेंगे, और उनको इंडिया में उनके जो मेंबर्स हैं उनको इंडिया में लेके आएँ, सो दैट वो लोग भी इंडिया में इन्वेस्ट करें, और इंडिया के जो भी फाइनेंस सेक्टर है उसको ग्रो करने में मदद करें। ठीक है सर।